اللہ کے رسول جنگل کے قریب سے ہو کر گزر رہے تھے تو آپ نے ایک بڑھیا کو دیکھا، وہ بیچاری لکڑیاں چننے کے لیے آئی ہے اور لکڑیاں چن کر کے وہ بڑا سا گٹھر باندھ لی ہے، وہ اٹھا نہیں پا رہی ہے، پورا یہ کیا کہتے ہیں کہ طاقت لگا کر کے، زور لگا کر کے کسی طریقے سے بڑھیا نے اپنے سر کے اوپر اس لکڑی کے گٹھر کو رکھ تو لیا، ایسے ہی وہ بوڑھی تھی، آدھی کمر اس کی جھکی ہوئی تھی، جیسے ہی لکڑی کے بوجھ کو، اس گٹھر کو اپنے سر پہ بڑھیا نے رکھ لیا تو وہ اور جھک گئی۔ نبی اکرم نے دیکھا اس بیچاری کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے رسول پہنچ گئے، ماں گھر کتنا دور ہے؟ کہا بیٹا یہ گاؤں کروس کرنے کے بعد، اس کے بعد جو گاؤں آئے گا وہی اسی بستی میں میرا گھر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ماں 2 بوجھ لکڑی کا گٹھر میرے سر پہ لاد دو۔ اللہ اکبر۔ اے میرے 3 پنیا کے بھائیو سنو، دوسروں کے دھندوں پہ لات مارنے والوں سنو، آپ کے بھائی کی یہ کپڑے کی دکان ہے، کسٹمر آتے ہیں ان کے پاس، آپ نے دیکھا دن میں 50 کسٹمر آتے ہیں ان کے پاس، آپ نے اسی دکان کے بغل میں کوئی دوسری دکان نہیں، کپڑے ہی کی دکان آپ نے کھول دی۔ مطلب مولانا یہ تو کمپٹیشن کا زمانہ ہے، کمپٹیشن کا زمانہ نہیں، آپ نے دشمنی کی۔ سنیے اللہ کے رسول نے کہا وہ لکڑی کا گٹھر دو میرے سر میں۔ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، کچھ دور جانے کے بعد اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ماں اور کتنا دور ہے گھر، اور کتنا دور ہے؟ بیٹا بس بیٹا یہ گاؤں کروس کرنے کے بعد ہی میرا گھر ہے، چلو۔ اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے ہیں بڑھیا اور تھوڑا سا چلیے، اور تھوڑا سا چلو بیٹا، اور تھوڑا سا چلو، لیکن اللہ کے رسول غصہ نہیں ہو رہے ہیں، بیچ راستے میں اس کو چھوڑ دوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ گھر پہنچا دیا، اللہ کے رسول نے گھر تک پہنچا دیا لکڑی کے اس گٹھر کو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ماں اب میں جا رہا ہوں۔ بڑھیا نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا بیٹھ جاؤ بیٹا، دودھ لے کے آتی ہوں بیٹا، تھوڑا سا دودھ پی لو اس کے بعد جانا بیٹا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول بیٹھ گئے، بڑھیا بکری کا دودھ دوہ کے لاتی ہے، اللہ کے رسول کو دیتی ہے دودھ کا گلاس، دودھ کا پیالہ۔ اللہ کے رسول دودھ کے پیالے کو اپنے ہاتھ سے، مبارک ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہاں سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے غیر مسلم ہے، الیکشن میں آپ ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ان کے گھر آپ گئے، چائے پانی کا انتظام کیا، اس کے دل کو توڑیے نہیں، چائے پانی آپ کر لیجئے ان کے گھر میں، ہاں وہ کھانا مت کھائیے جو بت کے نام پر انہوں نے چڑھایا ہے، وہ کھانا مت کھائیے جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہے، اللہ کے نام کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے نام سے جو ذبح کیا گیا ہے وہ کھانا آپ مت کھائیے۔ چائے پانی کا انتظام کیا ہے آپ کھا لیجئے، اس کے دل کو مت توڑیے۔ اللہ کے رسول نے دودھ پیا، پینے کے بعد کہا ماں میں گھر جا رہا ہوں۔ بڑھیا نے کہا بیٹا تم نے محنت کی بیٹا، تم تھکے ہوئے ہو بیٹا، میرے بوجھ کو تم نے ہلکا کیا بیٹا، لکڑی کا گٹر لاد کر کے تم نے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ بیٹا تو ہے کون؟ میں نے نام نہیں پوچھا بیٹا۔ اللہ کے رسول نے کہا ماں میرا نام محمد ہے، میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ جیسے ہی بڑھیا نے نام سنا کہ لے بیٹا رک رک بیٹا رک، بڑھیا نے کہا بیٹا رک، دوڑ کر کے بڑھیا گھر کے اندر گئی، 2 روئی کوٹن روئی لے کر کے آتی ہے بڑھیا، اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں دیتی ہے۔ پڑھیے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی، بڑھیا لے کر کے دیتی ہے، لو بیٹا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں ان کا کیا کروں میں؟ کہا بیٹا سنا ہے جو ایڈریس تم نے بتایا بیٹا، جو پتہ تم نے بتایا بیٹا، وہیں پر ایک محمد نامی آدمی بڑا جادوگر پیدا ہوا ہے۔ جادوگر، ہاں جادوگر کہہ رہی ہے بڑھیا، بڑا جادوگر پیدا ہوا ہے بیٹا، ان کی باتوں کو جو سن لیتا ہے بیٹا، باپ سن لے تو بیٹے سے دشمنی ہو جاتی ہے، بیٹا سن لے تو باپ دادے کے دین اور دھرم کو چھوڑ دیتا ہے۔ بیٹا کہیں تمہارے اوپر بھی جادو کا اثر نہ آ جائے، ان روئیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لینا بیٹا۔ اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
बुढ़िया की दी हुई रुइयों से अल्लाह के रसूल लाखों आंसुओं को पहुंचते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं माँ ठीक है मैं जा रहा हूं। बुढ़िया ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तुमने मुझको खुश किया, बेटा हंसाया, लकड़ी का गट्टर घर तक तुमने पहुंचा दिया बेटा, लेकिन बेटा तू मेरे घर से रो करके जाएगा बेटा, अच्छा नहीं हो रहा है। तेरे आंसू क्यों निकले बेटा, कोई तकलीफ हुई बेटा? तुमने मुझको हंसाया बेटा और तू मेरे घर से आंसू बहा के जाएगा। नबी ने कहा मां नहीं, कुछ बात नहीं, छोड़ो मां मैं जा रहा हूं। कहा नहीं बेटा बोलना पड़ेगा। बुढ़िया ने हाथ पकड़ लिया। नबी ने कहा ऐ मेरी मां सुन, जिस मोहम्मद का तू नाम ले रही है, जिसको तू जादूगर कह रही है, वही मोहम्मद तो मैं ही हूं। कहा बेटा तेरा तू नहीं बेटा, अब्दुल्ला का बेटा, आमिना का लख्त जिगर, अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का बेटा। माँ हाँ जो एड्रेस तुम बता रही हो माँ, मेरा ही बाप अब्दुल्ला है, मेरी माँ आमिना है, मैं अब्दुल्ला ही का बेटा हूँ, मक्के का रहने वाला हूँ। बुढ़िया ने चेहरे को देखा, कभी करीब से नहीं देखी थी, कहने लगी हाँ तू ही मोहम्मद है, तू ही मोहम्मद है? कहा मैं मेरा, हाँ माँ मेरा ही नाम मोहम्मद है। बताओ माँ मैंने तेरे ऊपर कौन सा जादू चलाया माँ, तुमने जादूगर का? माँ मैंने इतना काम कर दिया माँ, तू लकड़ी का गट्टर नहीं लाद सपने सर पे लाद करके नहीं ला पा रही थी माँ, मैंने इतना हेल्प कर दिया माँ, लकड़ी के बोझ को मैंने घर तक पहुंचा दिया। माँ बताओ मैंने कौन सा जादू चलाया तुम्हारे ऊपर कि तुमने मुझे जादूगर कहा? माँ बुढ़िया ने कहा बेटा मैंने करीब से, इतना करीब से नहीं देखा था बेटा, जो मुझे बता रहे थे तेरे बारे में वो झूठ बोल रहे थे बेटा। ऐ बेटा मेरा तो दिल चाहता है जिस दीन और धर्म को लेकर के तू आया है बेटा, मेरा तो दिल चाहता है बेटा कि उस दीन और धर्म के अंदर मैं भी अपनी एंट्री ले लूं। बेटा बोलो बोलो बेटा क्या करना पड़ेगा कि मैं भी मुसलमान बन जाऊं? अल्लाह के रसूल ने कहा मां बोलो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ करके बुढ़िया मुसलमान हो गई। मेरे भाइयों व तहमिलुल कल्ला, नबी की दूसरी सिफत ये थी आप दूसरे के बोझ को हल्का करते थे, आप दूसरे के बोझ को उसके घर तक पहुंचा दिया करते थे। ये नबी की मेरे भाइयों ये नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर ये सारे औसाफ कूट कूट करके भरे हुए थे। आपके अखलाक को देखकर जो आज दुनिया चीख चीख कर कहती है इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मेरे भाइयों ये मीडिया वाले इन वाकयात को पेश करें कम से कम। ये तो मोदी और योगी को सबसे पहले फोटो में देख रहे हो, मोदी को हाथ जोड़ के खड़ा कर दिया, यही लोग फंसा के जेल में डलवाते हैं, यही लोग फंसा के जेल में डलवाते हैं। अरे कम से कम इतना लिखो कि जो इस्लाम के अंदर बदनुमा दाग लगा रहे हो कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। नहीं, इन सब वाकयात को पेश करो, वायरल करो और दिखाओ कि तलवार के जोर से नहीं बल्कि नबी के आला अखलाक के जरिए से इस्लाम फैला है। ऐ मेरे तीन पनिया के मुसलमान भाइयों सुनो, मैं मुसलमानों से मुखातब करके कह रहा हूं, हमारे अपने भाइयों से मुखातब करके कह रहा हूं, तुम लोगों को गैर मुस्लिमों से लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, गैर मुस्लिमों को पकड़ करके लाने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को, आपके अखलाक को अगर पैदा कर लें अपने अंदर तो ये गैर मुस्लिम दुनिया ऑटोमेटिक इस्लाम कबूल करती चली आएगी। कितना घंटा हुआ? मगरिब के बाद से सुन रहे हैं? कितना हुआ? ठीक है मैं आ रहा हूं, मौजू पर आ रहा हूं, ठीक है। मैं सुनिए, मगरिब के बाद से लेकर के अब तक आप कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं। कुरान की आयत है, थोड़ा सा मैं कुछ काम करूंगा इसीलिए मैं मौजू से हट रहा हूं।
मौजू से मैं हट रहा हूं। जानते हैं एक मोमिन की सिफत होती है, इन्नमल मुअमिनून अल्लदीना इदा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। हम मोमिन अपने आप को दावा करते हैं, लेकिन मोमिन की पहली सिफत यह है कि मोमिन के सामने जब अल्लाह का नाम आ जाए तो मोमिन का दिल दहल जाता है। अजान में अल्लाहु अकबर, यह अल्लाह का नाम आया, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह का नाम सुनने के बाद अगर आप मस्जिद में नहीं आए तो समझ लीजिए कि आपका दिल नहीं दहला। अब हकीकत में मोमिन है कि नहीं फैसला आप करें। दूसरी चीज, मोमिन के सामने जब कुरान की आयत पढ़ी जाए तो मोमिन का ईमान ताज़ा हो जाता है, ईमान के अंदर बढ़ोतरी पैदा होती है। मगरिब के बाद से लेकर के रात 4 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, मेरे बाद और 2 मौलाना है मेरे भाइयों। उसके बाद फजर की नमाज आप नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ ईमान ताज़ा हुआ। इतने लोग थोड़े फजर की नमाज पढ़ेंगे मेरे भाइयों। तो सुनिए तीसरी चीज, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन की तीसरी पहचान यह है कि वो अपने रब ही के ऊपर भरोसा करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। हाँ, मोमिन की तो एक सिफत यह भी है कि जब रसूल का हुक्म आ जाए और रसूल कह दें कि ये करो, दौड़ पड़ो, तो ये ना देखे कि यहाँ कीचड़ है, यहाँ दौड़ना मुनासिब नहीं है, बल्कि नबी का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है तो वहीं दौड़ पड़े। जानते हैं एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने चंदा किया, कहा कौन है जो 100 ऊंट कुर्बानी देगा, नबी उसको जन्नत की गारंटी दे रहा है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये नबी अकरम के ससुर जी थे। ससुर जी कहने लगे 100 ऊंट मैं दे रहा हूं, जन्नत मुझको दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान बैठ जाओ, बैठ जाओ उस्मान, बैठ जाओ। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान के बाद कौन है जो 100 ऊंट की कुर्बानी देगा, नबी उसको गारंटी दे रहा है कि नबी उसको जन्नत दिलवाएगा। हाँ, फिर हजरत उस्मान उठ गए, फिर हजरत उस्मान उठ गए। अल्लाह के रसूल 100 और ले लीजिए, लेकिन जन्नत हमको दीजिए। देख रहे हैं किसी को मौका नहीं दे रहे हैं। तकरीर आपको अच्छी लग रही है ना, कुरान और हदीस की बातें आपको अच्छी लग रही है कि नहीं? कितने लोगों को अच्छी लग रही है? हाथ उठाइए तो, हाथ उठाइए तो। अल्लाह अकबर, उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, हाथ नीचे कीजिए। माशाअल्लाह मेरे भाइयों, कुरान ये अल्लाह ने सच कहा है कुरान के अंदर कि मोमिन के सामने जब कुरान के आयतों की तिलावत की जाए तो मोमिन का ईमान बढ़ता है। हकीकत में कुरान और हदीस की बातें हुई, आपने हाथ उठाया कि नहीं मौलाना कुरान और हदीस की बातें हम समझ रहे हैं, हमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज बता दूं, आपने हाथ उठाया है, अगर अभी भाग गए तो मुनाफिक की अलामतों में से एक अलामत आपके अंदर पाई जाएगी। आप कहे अभी हाथ उठाए कि मौलाना तकरीर अच्छी लगी, कुरान और हदीस की बातें अच्छी लग रही हैं, ठीक है आप सुनाइए, और आप मेरी तकरीर खत्म होने से पहले अगर चले गए तो मुनाफिक की एक अलामत पाई जाएगी। आपने वादा किया, फिर आप जाकर के भाग रहे, वादा खिलाफी करना मुनाफिक की अलामत है। सुनिए तीसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, और कौन है? फिर उठ गए हजरत उस्मान। अल्लाह के रसूल 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान मैं तुमसे नहीं कहता हूं, बैठ जाओ ना, तुमसे मैं नहीं कह रहा हूं। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान के बाद कौन है? फिर हजरत उस्मान उठ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल 100 और ले लीजिए। कि अल्लाह के रसूल ने 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार ऐलान किया, और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 7 मरतबा उठ के खड़े हो गए और कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल जन्नत मुझे दे दीजिए, 100 ऊंट हमसे ले लीजिए। 700 ऊंट की कुर्बानी दिए थे अल्लाह हजरत उस्मान गनी। जानते हैं अल्लाह के रसूल ने जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ लोगों सुनो, एक ही जगह पे खड़े होकर के उस्मान ने 700 ऊंट की कुर्बानी दिए हैं। ये उस्मान सुन लो, आज से अगर उस्मान एक भी जन्नत का काम ना करे फिर भी उस्मान जन्नत में जाएगा, उस्मान जन्नत में जाएगा, उस्मान जन्नत में जाएगा। 5 मिनट एक ऐसे वाकया को मैं आपके सामने रख रहा हूं। 3 पनिया वालों, सरसों का दाना आपने देखा है? सरसों का दाना देखा है ना, कितना इतना बड़ा होता है नहीं?
इतना बड़ा होता है ना, ऐ छोटा सा, ये सरसों के दाने इतने छोटे होते हैं। अगर उतना भी ईमान है ना, सरसों के दाने के बराबर भी अगर हमारे और आपके पास ईमान है ना, तो मैं अगर कहूंगा कि आप उठ जाएं तो उठ जाएंगे, बैठ जाएं तो बैठ जाएंगे। इस वाक़े को थोड़ा सा सुन लीजिए, 2-4 मिनट, ज्यादा नहीं। अब्दुल्ला इब्ने उमर बीमार पड़ गए थे, डॉक्टरों ने इनको इलाज किया। कुछ दिनों के बाद, 1 महीने की इलाज के बाद डॉक्टरों ने बताया कि अब ये खतरे से बाहर हैं, अब इनको जो दिल चाहे वो खिलाओ इनको, ये खतरे से बाहर हैं। बीवी ने कहा, मोहतरम दिल क्या चाहता है, क्या खाएंगे आप? कहा, बीवी, डॉक्टरों ने नाक में दम करके रख दिया था बीवी, दिल तो चाहता है कि मैं मछली खाऊं। गुलाम को भेजा, जाओ मार्केट से मछली लेके आओ। गुलाम मार्केट से मछली लेके आया, उसको तेल में भुना, अच्छी तरीके से साफ करने के बाद, तेल में भुनने के बाद, रोटी बनाने के बाद दस्तरखान में रख दिया। बीवी ने जाकर के शौहर को बड़े प्यार से सीने से लगाकर उठाया, मेरे सरताज उठिए, चलिए आपके लिए दस्तरखान में रोटी और मछली हाजिर है। प्यारी बीवी रोटी का टुकड़ा तोड़ करके शोरबे में डुबा करके मछली लगा करके अब मुंह के अंदर वो रोटी का टुकड़ा देगी, डालेगी। अब्दुल्ला इब्ने उमर के मुंह में, इतने में बाहर के दरवाजे से आवाज आ रही है, शैअन लिल्लाह, अल्लाह के नाम से कुछ है तो दे दो। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, रोटी का लुकमा नीचे करो, जाओ पहले देखो कौन दरवाजे में आया है। कहा, कोई साइल मांगने आया है, कोई साइल मांगने आया है, जाओ रोटी और मछली उसी को दे दो। क्या कहा? बीवी ने कहा, है मेरे सरताज, बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया है, अगर आपको देने ही की जरूरत है, मैं अलमारी से, संदूक से मैं रुपये निकाल करके उस साइल को दे रही हूं, वो जाकर के मछली रोटी खरीद करके खा लेगा, अपने मन पसंद का खाना अपनी बीवी बाल बच्चों को खिलाएगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, ये मशवरा तो ठीक है, जाओ दे दो। बीवी रुपया गिन करके देने जा रही है साहिल को। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फिर बुलाया, इधर आओ थोड़ा। कहा, क्या? कहा, देखूं कितना दे रही हो। कहा, ठीक तो दे रही हूं। कहा, देखूं पहले। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने हिसाब लगाया, मछली का इतना, तेल का इतना, मसाले का इतना, आटा का इतना, जोड़ करके कहा कि अगर यही खाना वो खाए तो उतना ही रुपया दो। कहा कि हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही दे रही हो, कम नहीं दे रही हो, जाओ दे दो। बीवी रुपया लेकर के दरवाजे में पहुंचने की वाली थी कि फिर अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बोला, या मेरी बीवी यहाँ वो मेरी बीवी। का क्या हुआ फिर? कहा, यहाँ दस्तरखान में रुपया रखो। रखवाया बीवी को, दस्तरखान में रुपया रखो। 3 पनिया के मेरे मुसलमान भाइयों, मैंने कहा ना कि सरसों के दाने के बराबर भी अगर हमारे और आपके पास ईमान है, तो इस वाक़े को सुनने के बाद मैं तो दिल की गहराइयों से ये वादा करता हूं कि आप बैठ के नहीं रह पाएंगे। बीवी को बुलाया, रुपया रखो दस्तरखान में, रख दिया। बीवी ने पूछा नहीं, बीवी ने दस्तरखान में रोटी भी है, मछली भी है, रुपया भी है, पूरा उठा करके अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि जाओ साइल को मांगने वाले को दे दो। का क्या हुआ? का पहले दे करके आओ, बाद में बताऊंगा। बीवी ने दे दिया साइल को। अब आ गई बीवी, आ गई शौहर के पास बैठ गई, कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, अब आप बताइए कि आपने पूरा क्यों दे दिया, क्यों दे दिया पूरा आपने? तो शौहर ने जवाब दिया, ऐ मेरी बीवी, असल पॉइंट यहीं पर है, ऐ मेरी बीवी, जब तू रुपया लेकर के साइल को देने जा रही थी तो कुराने करीम की ये आयत मेरे दिमाग में आ गई। कौन सी आयत? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम
उस वक्त तक नेकी नहीं हासिल कर सकते, तुमको नेकी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक कि तुम अपने महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में ना खर्चा कर दो। बीवी, मैं तो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि रुपया मेरे नजदीक महबूब है या मछली मेरे नजदीक महबूब है। मछली देने जा रहा हूं, दिल में ख्याल आ रहा है कि रुपया मेरे नजदीक पसंदीदा है, रुपया देने जा रहा हूं तो फिर दिल में ख्याल आ रहा है कि मछली मेरे नजदीक पसंदीदा है। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने दोनों उठा करके दे दिया। तीन पनिया के मेरे भाइयों, आप ये जलसा मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए कर रहे हैं। मेरे भाइयों, उस मस्जिद से आपको मोहब्बत है। हाँ, त्रिपुरा के अंदर मस्जिदें ढा दी जा रही हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, वीडियो देख करके दिल में तकलीफ होती है। क्यों? अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत है और रुपये से भी मोहब्बत है। उस घर के लिए अगर मांगा जाए तो अब आप सोच में पड़ गए कि हाय मौलाना, हम तो बीच में फंस गए। अब अल्लाह के घर से भी मोहब्बत है और 500 गांधी छाप नोट के ऊपर भी मोहब्बत है। मेरे भाइयों, मुझसे पहले जो मौलाना चंदा कर गए, मैं आपसे 1000, 2000, 5000 नहीं लूंगा। 1, 2000, 5000 मैं आपसे नहीं लूंगा। चूसने वाले चूस लिए हैं आप लोगों को। बस मैं ये दिखाऊंगा कि आपके जो ये मस्जिद तामीर कर रहे हैं, एक भी मेरा भाई जो गरीब से गरीब है, एक भी मेरा भाई छूटने ना पाए। चाहे 1 ही रुपये का सिक्का अगर उसके पास है, 1 ही रुपया है, तो मेरे भाइयों, मस्जिद अल्लाह का घर है। इसके लिए मैं अल्लाह का नाम लेकर के खड़ा हो रहा हूं। 4 वॉलंटियर हजरात खड़े हो